गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? स्टार्ट करेंगे. सो yesterday we have concluded a very important topic called Caro, section number 143, subsection 11. So now today we are going to start everything about the person called auditor, and the name of the chapter is known as company audit, right? As I already informed you yesterday कि in this chapter we are going to understand section number 138 to 148. And from the section number 138 to 148 पे only one section is there which talks about the internal auditor. Remaining all sections are going to talk about. We'll try my level best to make this chapter super easy for you, right or not? But make sure that in this chapter you should be remembering the sections, because we know that as it is, same chapter is there in your CA final. So like in the Caro, I made you understand everything exhaustively. I'll try my level best to tell you everything exhaustively here as well. Okay? Now, first of all, let us wind up the one and only section which is talking about the which auditor? Internal auditor. Okay? Now, see, section number 138, it talks about the which auditor, everyone? Internal audit. First of all, in this section, what we have to understand, we are going to talk about him little bit more in one chapter called Risk Assessment and Internal Control chapter. What is the name of the chapter? But in this chapter, company audit में, we are only going to talk about him, what is written in the section. ठीक है? तो 138 does not define internal audit. 138 tells you that कि where the internal auditor is mandatory and where it is not mandatory, who appoints, all those law provisions are given in 138. So what is internal audit, how he does the work, what are the functions he performs, that we are not going to talk about here. That we'll talk in the chapter called what? Risk assessment and internal control. Start kare sir. So section number 138 which talks about what? Internal audit, everyone. First of all, you tell me, what do you know about the internal audit? क्या होता है internal audit and how it is different from external? चलो मैं तुम्हें बेस देता हूं and try to give me the answer. Is it carried out at the end of the year or throughout the year? Throughout the year. Am I correct? And he is the one who has to be a qualified CA? Or qualification does not matter, but preferably we appoint whom? Qualified CA only, but that doesn't mean that ki only qualified CA is required. But when it comes to the external audit, qualified practicing CA, what we need? Qualified practicing CA. See, there are reporting formats, I already told you, as per the external audit. We know as per 700 how many elements are there? 14 elements, title, addressee and all those things. Likewise, do we have any internal audit report format also? Answer is yes. SIAs are there. What are the standards? SIAs. They are known as standards on which audit? Internal audit. उसमें 370 and 390 and 380 ये तीन स्टैंडर्ड है जो अपने को रिपोर्टिंग के बारे में बोलते हैं, बट नॉट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर, बट ऑफ विच ऑडिटर? इंटरनल. बट दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर पोर्शन, दैट यू शुड नॉट इवन बी अवेयर ऑफ. तो उसे हम लोग बोलते हैं SIAs, स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट. लाइक वी हैव essays ranging from 200 series to 700 series. Like that, there also SIAs are there. In CA final, you have one chapter on internal audit. So there you will understand those standards. One or two standards are there, right? Now, the first thing which you have to understand is the applicability of which auditor, everyone? Internal audit. और ये तुम्हें पता ही है कि if you are a which company? Listed company. तो what is mandatory? Internal audit is mandatory. सर ये कहां पे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है LODR regulations में. Where it is written, everyone? LODR. LODR stands for Listing Obligations and Disclosure Requirements. What is the full form? Listing Obligation Disclosure. SEBI क्या बोलता है कि भैया आप listed company हो, irrespective of your nature and size and structure of the entity, internal audit is what? Compulsory. We are not going to check any paid up share capital. We are not going to check any turnover. We are not going to check anything. You are a listed, internal audit is what? Mandatory. Now, then the Companies Act says that if you are a which company? Unlisted public company, then any of the four conditions to be satisfied. अब इसको learn कैसे करना है? Into 2 करना है अपने को. तो 25 into 2, 50 into 2, 100 into 2, 200. Again repeat. What is the first one? 25 into 2, 50 into 2, 100 into 2. 25 crores or more क्या होना चाहिए? Public deposit. If your public deposits are greater than equals to what? 25 crores.
or if your paid up share capital is greater than equals to what? 50 crores, or if your outstanding borrowings are greater than equals to 100 crores, or if your turnover is greater than equals to 200 crores, so आपके लिए भी internal audit will become compulsory. Otherwise, if you are not satisfying any of these four conditions, suppose it is 24, this is 49, this is 90, and this is 150, any of the condition is matching or not matching? Internal auditor required or not required? Not required. So tell me, if I am a listed company, optional or mandatory? If I am an unlisted public company, any of the four condition or all the four condition? Any of them. What is my condition number one? Public deposit should be greater than equals to 25 crores, or paid up share capital should be greater than equals to 50 crores, or outstanding borrowings 100 crores or more, or turnover 200 crores or more. Is it clear everyone? अब किसको कहां पे टेस्ट कर रहा है, that I will tell you. Are you getting the point? But let us finish the third company also. What is the third company? A private company में first and second point eliminate कर दो, third and fourth same. If I'm a private company, if my outside borrowings are greater than equals to 100 crore or turnover is greater than equals to, so in that case internal audit will become mandatory in case of which company? अब बताओ, इजी था या बहुत इजी था? बहुत इजी था. तो मेरे को ये बताओ, अगर मैं लिस्टेड हूं तो मैंडेटरी, अगर मैं अनलिस्टेड पब्लिक हूं तो any of the four condition, 25 crores or more, 50 crores or more, 100 crores or more, 200 crores or more. 25 crores or more what? Public deposit. 50 crores or more what? Paid up share capital. Outstanding borrowing 100 crores or more. Turnover. और लॉजिक लगा के देखो, प्राइवेट कंपनी को पब्लिक डिपॉजिट अलाउड ही नहीं है, तो पॉइंट नंबर 1 निकल गया. और प्राइवेट कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड विदाउट एनी मिनिमम कैपिटल ऑल्सो, तो कैपिटल वाला पॉइंट भी निकल गया. व्हाट आर द 2 पॉइंट्स लेफ्ट? आउटस्टैंडिंग बोरिंग्स, टर्नओवर, दैट शुड बी 100 करोड़ और मोर, एंड द टर्नओवर शुड बी. तो अगर आप एनी ऑफ द 3 कैटेगरीज ऑफ द कंपनी हो, और इफ यू आर सेटिस्फाइंग एनी ऑफ दीज what do you say positions, then in that case it is mandatory for you to appoint a internal auditor, और आपको कंपनी में internal audit system install करना है. Install in the sense there will be a dedicated section which you are going to provide to the which auditor? Internal. So it means he is going to be your integral part of your ICS. What is ICS? Internal control system. तो ये आपके internal control system का part हो जाता है. समझ में आ रहा है? हाँ के ना? तो दिस इज व्हाट सेक्शन नंबर 138 which talks about the which auditor? Internal. अभी अपन टेस्टिंग करेंगे कि सर ये जो 4 पॉइंट्स आपने बताए हैं, पब्लिक डिपॉजिट, पेड अप शेयर कैपिटल, आउटस्टैंडिंग बोरिंग्स और टर्नओवर, इसको टेस्ट कहां पे करना है? देखो, ये टेस्ट होगा लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट पे. व्हेन वी आर गोइंग टू टेस्ट इट? नाउ टेल मी व्हिच फाइनेंशियल ईयर इज गोइंग ऑन. तो अगर मेरे को ये कैलकुलेट करना है कि 22-23 में इंटरनल ऑडिटर इज रिक्वायर्ड और नॉट, डू वी हैव 22-23 का ऑडिटेड बैलेंस शीट? विच वन वी हैव अवेलेबल विद? तो लास्ट वाले का देख लेंगे. तो लास्ट 21-22 के बैलेंस शीट पे अपन देखेंगे अगर पब्लिक डिपॉजिट कितना हुआ, 25 करोड़ और मोर, तो दिस ईयर इंटरनल ऑडिटर बिकम्स व्हाट? कंपल्सरी. व्हाट इज द सेकंड वन? ये भी लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट पे चेक करेंगे. व्हाट इज द फोर्थ वन? टर्नओवर. ये लास्ट ऑडिटेड पीएनएल में चेक करेंगे, सॉरी ट्रेडिंग एंड पीएनएल में. लेकिन ये क्या है? डू वी हैव एनी प्रीवियस हिस्ट्री अटैच विद दिस पॉइंट एज वेल? कारो में भी करा था. तो व्हेन वी टॉक अबाउट द बोरोइंग्स, डू वी चेक ऑन अ पर्टिकुलर डे और एनी पॉइंट ड्यूरिंग द ईयर? ठीक है ना? पूरे 21-22 फाइनेंशियल ईयर में अगर मेरा 1 पॉइंट भी बोरोइंग 100 करोड़ और उससे ऊपर हुआ, देन इन दैट केस द इंटरनल ऑडिट बिकम्स व्हाट? कंपल्सरी. तो दिस वन आई हैव टू चेक ऑन अ विच डेट? ये मेरे को 31/3/2022 को चेक करना है. ये भी मेरे को 31/3/2022 को चेक करना है. दिस आई हैव टू चेक ऑन एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. और ये भी मेरे को 31/3/2022 का जो ट्रेडिंग अकाउंट है, देयर आई विल चेक. सो टेल मी, वेयर आर यू गोइंग टू टेस्ट द आउटस्टैंडिंग बोरिंग्स? एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. And where you are going to test the remaining 3? Last audited financial statement. Turnover मिल जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, पब्लिक डिपॉजिट्स एंड पेड अप शेयर कैपिटल मिल जाएगा अपने को बैलेंस शीट में. इज इट क्लियर एवरीवन? सेम इज द केस टू अप्लाई फॉर द विच कंपनी? प्राइवेट कंपनी. अब तुम्हें बताओ, इज देयर एनी डाउट इन दिस चार्ट? तो जल्दी से क्विकली रिवाइज करेंगे. लिस्टेड कंपनी हो तो, अनलिस्टेड पब्लिक हो तो,
25 crores or more, 50 crores or more, 100 crores or more, 200 crores. What is 100 crores or more? देखा, फंस गई ना बच्ची. What is 100 crores or more? तो उसके साथ साथ अपने को आगे वाला फ्रंट वर्ड भी याद करना है. 25 crores or more क्या है? पब्लिक डिपॉजिट. 50 crores or more क्या है? पेड अप शेयर. 100 crores or more and 200 crores or more. क्रिस्टल क्लियर है. अभी यही सेक्शन क्या बोलता है कि दिस सेक्शन ऑल्सो सेज दैट कि भैया हु कैन बी द विच ऑडिटर. तो इसे अपन प्रेफरेंस वे में याद करेंगे. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट इन प्रेफरेंशियल वे. एवरी कंपनी डिजर्व्स टू हैव अ सीए और सीएमए वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट टू बी देयर विच ऑडिटर. तो भैया कंपनी की पहली चॉइस क्या होगी? सीए और सीएमए, आइदर इन प्रैक्टिस और नॉट. तो इट मींस आई एम टेलिंग यू राइट नाउ एन एक्सेप्शनल थिंग. व्हाट इज दैट? कि भैया दिस इज द ओनली ब्रांच ऑफ ऑडिट where a non-practicing CA can also do the audit and sign the audit report. मतलब अगर आप कहीं कंपनी में जॉब कर रहे हो and somebody offers you the internal audit का assignment, you need not accept it or you can accept it. Are you a COP holder? But यहाँ पे COP required है, optional है? Optional है. इसका मतलब can I say that in the point number 1 only 4 people are there? In the point number 1 only 4 people are there. Who are there? Practicing CA, non-practicing CA, practicing CMA, non-practicing. So that will be your first choice as a which auditor? Internal. But मान लो I'm a company, I'm unable to afford this person. मेरे को internal auditor को 2 लाख रुपए पर मंथ नहीं देना है. तो I can't afford this CA and CMA kind of stuff. तो एक काम करो, any other professional from the recognized professional body. What is the second choice? अच्छा मैं क्या बता, इनडायरेक्टली बचा कौन? CA. तो वो यहां पे कवर हो गया. एनी अदर प्रोफेशनल फ्रॉम द अदर रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी. इंडिया में अपने को आईसीए है, आईसीए है, वो दोनों आईसीए यहीं पे कवर हो गए. बचा क्या? आईसीएस है, वो यहां पे कवर हो गई. बट मान लो मेरे को सीएस भी अफोर्ड नहीं करना है, आई एम अनेबल टू अफोर्ड दैट पर्सन, देन लास्ट चॉइस इज यू कैन हायर योर ओन एम्प्लॉय एंड यू कैन हायर योर ओन ऑफिसर एज अ विच ऑडिटर? इंटरनल ऑडिटर. बट ही शुड बी मिनिमम पीजी. व्हाट इज पीजी? पोस्ट ग्रेजुएट. एमबीए होना चाहिए कम से कम, एमकॉम होना चाहिए कम से कम, एमएससी होना चाहिए कम से कम. तो वी नीड अ अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट. पोस्ट ग्रेजुएट. अब मेरे को बताओ मेरी फर्स्ट चॉइस क्या है? सीए और सीएमए वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट. सेकंड चॉइस एनी अदर प्रोफेशनल फ्रॉम द अदर रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी. व्हाट इज माय थर्ड चॉइस? एनी अदर एम्प्लॉय और ऑफिसर फ्रॉम द कंपनी, विद इन द कंपनी ओनली. इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं इज ही मोर इंडिपेंडेंट और लेस इंडिपेंडेंट. हो सकता है कि इंटरनल ऑडिटर कंपनी का एम्प्लॉय हो, तो एम्प्लॉय विल बी मोर लॉयल टू द एक्सटर्नल ऑडिटर और टू द मैनेजमेंट. तो इसीलिए तो देयर आर फुल ऑफ रिस्क व्हेन द एक्सटर्नल ऑडिटर यूजेस द वर्क ऑफ व्हाट? इंटरनल. बट एट द एंड ऑफ द डे इज इट पॉसिबल टू डू एनी ऑडिट विदाउट हिज वर्क? नो. तो देयर कम्स द नीड ऑफ एसए 610. तो 610 अपन यहां पे नहीं पढ़ेंगे, 610 पर पढ़ेंगे रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल पे, कि हाउ टू यूज द वर्क ऑफ विच ऑडिटर? इंटरनल ऑडिटर. इज देयर एनी डाउट और नो डाउट? तो मेरे को चॉइसेस बताओ अगेन. सीए और सीएमए, प्रैक्टिसिंग और नॉट, एनी अदर प्रोफेशनल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी, और लास्ट my own employee or own officer who should be minimum PG. What is PG? Post grad. ठीक है. ये अपन इतना डिटेल में क्यों जा रहे हैं बोल के, क्यों बोले तो ऑडिटिंग में ये चैप्टर इज गोइंग टू बी रिफर्बिश्ड अगेन. व्हाट यू हैव डन इन लॉ हम उसको और ज्यादा पॉलिश कर रहे हैं ऑडिटिंग में, बिकॉज दिस चैप्टर एक्चुअली इज अ पार्ट ऑफ ऑडिटिंग सब्जेक्ट. इट इज गिवन इन योर लॉ बिकॉज तुम्हारे 148 सेक्शंस आर गोइंग टू गेट कवर्ड. So they want you to comfortable while coming towards the auditing subject. A little bit of idea to you all had. Are you getting? I'm just going to push it towards the certain limits, right? अभी अपन क्वेश्चन अराइज करेंगे. सर इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है? पहले ये बताओ, व्हाट इज द फर्स्ट इंप्रेशन यू हैव? इंटरनल ऑडिटर को मैनेजमेंट अपॉइंट करती है. लेकिन अगर अपने को टू द प्रिसाइज जाना है तो लिसन, अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है और अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं है, इफ द कंपनी इज हैविंग एन ऑडिट कमेटी, इफ द कंपनी इज नॉट हैविंग एन, इफ द कंपनी इज हैविंग एन ऑडिट कमेटी अंडर सेक्शन 177, then in that case audit committee will recommend, not appoint. Audit committee will recommend.
अपॉइंटमेंट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो अपॉइंट कौन करेगा? बोर्ड ऑफ, बट रिकमेंडेशन कौन देगा? ऑडिटर. If the audit committee is there in the company, but if the audit committee is not there in the company, recommendation and appointment both by whom? बहुत इजी वे में बताया. ये पूरा चैप्टर मैं तुम्हें चार्ट बेस में कराऊंगा, एंड आई कैन बेट यू यू विल नेवर फॉरगेट दिस चैप्टर एट एनी कॉस्ट थ्रू आउट योर लाइफ, इवन इफ यू वांट टू, देन ऑल्सो यू कांट. अब मेरे को बताओ, लेफ्ट साइड में क्या किया था? ऑडिट कमेटी. राइट साइड में नो ऑडिट कमेटी. इफ द ऑडिट कमेटी इज देयर, recommendation by audit committee, appointment by board of directors. If no audit committee, both appointment and recommendation by, और 177 भी करेंगे कि when do we need a audit committee, बट वो अपन लास्ट में करेंगे 148 करने के बाद. ठीक है. नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि सर हमने इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट कर लिया, किसी को इंटीमेट करना है अपने को? हाँ, अपनी चाची है ना, आरओसी, अपनी चाची नेबर, they always poke the nose in your company or not? कंपनी लॉ में हर मोमेंट पे क्या फाइल करना? फाइल इट विद होम, फाइल इट विद होम. ये वो वाले नेबर्स है who are more interested in your house rather than there. और अपनी चाची कौन है? आरओसी. तो अपन अपनी चाची को इन्फॉर्म करेंगे MGT 14 में. व्हाट इज द फॉर्म नंबर? विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट. विद इन हाउ मेनी डेज? तो हमने अपनी चाची को इन्फॉर्म कर दिया आरओसी का कि वी हैव अपॉइंटेड अ विच ऑडिटर? इंटरनल ऑडिटर. दिस इज अ फॉर्म नंबर MGT 14. उसका नेम, डेट, एवरीथिंग. और चाची क्या करेगी? अपने रिकॉर्ड में लिख लेगी, यस एबीसी लिमिटेड हैज अपॉइंटेड अ विच ऑडिटर? इंटरनल. क्रिस्टल क्लियर? आगे ना समझ में आ गया? तो अब मेरे को बताओ, 138 को हमने अभी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ऑलरेडी. फर्स्ट हमने क्या समझा? एप्लीकेबिलिटी. फिर हमने हु कैन बी, और थर्ड में हु अपॉइंट्स हिम. तो हु कैन बी? CMA, any other professional or officer or employee. Minimum PG. Where it is applicable, listed, unlisted public company, private. Listed में mandatory. Unlisted public company में 4, 25 crores or more, 50 crores or more, 100 crores or more, 200 crores or more, public deposit, paid up share capital, outstanding borrowing. 1, 2 and 4 to be tested on the last audited financial statement. The third one is to be tested on any point. और ऊपर के 2 पॉइंट्स को अगर अपन निकाल दे तो दिस बिकम्स द आंसर ऑफ प्राइवेट कंपनी. इसको अपॉइंट कौन करेगा? अगर ऑडिट कमेटी है तो रेकमेंड ऑडिट करेगी और अपॉइंट बोर्ड करेगा. लेकिन एसी कमेटी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही अपॉइंट करेंगे, वही रेकमेंड करेंगे. एंड इसका इंटीमेशन किसको देंगे? आरओसी को, इन फॉर्म नंबर MGT 14 विद इन 30 डेज. क्रिस्टल क्लियर? अभी नेक्स्ट थिंग, सर व्हाट और इंटरनल ऑडिटर कैन डू, व्हाट वी कांट डू. हम लोग इसके कैन के ऊपर वी आर नॉट गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट ही कांट. इंटरनल ऑडिटर को आप कौन सा फंक्शन नहीं दे सकते अपनी कंपनी में? विच काइंड ऑफ वर्क यू कांट अलॉट टू द विच ऑडिटर? इंटरनल. भैया इंटरनल ऑडिटर कांट बी योर विच ऑडिटर? स्टैट्यूटरी और एक्सटर्नल. अगर आप किसी कंपनी का इंटरनल ऑडिट हो in the same company, you can't do the which audit? Etc. You have to leave it and then you have to do it. First of all, there should also be a gap of 1 year. Second point, you can't be the which auditor? Tax audit. You can't be the which auditor? Cost auditor. You can't be the which auditor? GST. But let me tell you one thing, GST audit is abolished. Right or not? 1st April 2022 say GST audit is abolished. But still it is there in your ICAI study material, so you have to mention that. What are the 4 things internal auditor can't? Statutory audit, tax audit, cost audit, GST audit. In the same company. In the which company? Same company. तुम उसी कंपनी में इंटरनल ऑडिटर हो तो you can't be that company's tax auditor, cost auditor, GST auditor, statutory auditor. Next point. अच्छा, इंटरनल, ये पूरा पॉइंट पढ़ो और मेरे को इसका मीनिंग बताना. क्या लिखा हुआ है? Can't be involved in bookkeeping. Sir, bookkeeping system is the prime responsibility of internal control system. किसकी responsibility है? But are they doing their work properly or not? उसे चेक कौन करेगा? Internal auditor. तो हमने क्या लिखा कि you can't be involved in bookkeeping system, but you can be the examiner of what? Bookkeeping system. तुम बुक्स बनाओगे नहीं, तुम बुक्स को क्या करोगे? चेक करोगे. So you can't be involved in the bookkeeping of the company, can't be involved in the accounting system of the company, can't be involved in what? FIS, financial information system of the company, can't be involved in the executive functions of the company, and can't be involved in what? Managerial decision.
क्योंकि अगर आप इसमें इन्वॉल्व हो जाओगे तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ जाएगा। कौन सा थ्रेट आ जाएगा? तुमने वो काम किया और उसी को ही एग्जामिन करना, तो यू विल ऑलवेज से दैट आई एम बेस्ट। एम आई करेक्ट और नॉट? तो इट्स बेटर टू मेक यू क्वालिफाइड और डिस्क्वालिफाइड? डिस्क्वालिफाइड। तो टेल मी द 9 disqualifications everyone on your fingertips. You can't be the statutory auditor, tax auditor, GST auditor, cost auditor. You can't be involved in bookkeeping, accounting, FIS, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, एग्जीक्यूटिव फंक्शन। ये 9 काम इंटरनल ऑडिटर कैन और कांट। अदर देन दिस इंटरनल ऑडिटर कैन। अच्छा, अगर एग्जाम में आ गया क्वेश्चन करेक्ट इनकरेक्ट में, इंटरनल ऑडिटर वाज इन्वॉल्वड इन एग्जामिनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो तुम उसे करेक्ट बोलोगे या इनकरेक्ट बोलोगे? करेक्ट, ही कैन, बट विल योर आंसर चेंज इफ ही वाज इन्वॉल्वड इन दैट? देन इट इज अलाउड और नॉट अलाउड? Otherwise, which threat will come? Self-review threat will come. Did you get the point? This is all. देखो क्या होता है, sometimes the ICAI will pump up these kind of questions out of the blue moon, और वहां पे जाके तुम्हारी हो जाती है panic situation. You will not be able to handle that situation on your own. But let me tell you one thing. अगर आप एक लंबा सा breathe करोगे, if you will be calm and composed during your examination, auditing में there is not even a single question going to come which you have not heard or which you have not listened anywhere. It will come what you have heard and listened. It's just that you have to immediately, you have to be fast in striking it in your head कि where did you learn it and what was the content you have to write. तो ये myth है and this is has been building up since last 3-4 years कि auditing बहुत difficult है, बहुत difficult है. I do agree कि थोड़ा सा level and bar has been raised as compared to other subjects. But auditing impractical और impossible नहीं है to crack. यहां पे भी लोग हैं जो 60 प्लस लेते हैं, 70 प्लस भी लेते हैं, 80 प्लस भी लेते हैं। और मैंने तुम्हें कितनी बार बोला, वो 80 प्लस और 40 प्लस वाले में डिफरेंस क्या है? नॉट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, इट मीन द बेस्ट एंड बेटर एंड गुड। ये आंसर होते, 40 वाले का गुड आंसर होगा, 60 वाले का बेटर होगा और 70-80 वाले का तो बेस्ट होगा। तो आंसर हर कोई करेक्ट लिखता है, बट हाउ यू प्रेजेंट दैट आंसर, दैट मैटर्स अ लॉट इन द एग्जामिनेशन। क्लियर है? तो विद दैट अवर विच सेक्शन इज ओवर 138। अब पूरा 2 मिनट में वाइंड अप करेंगे। लिस्टेड हो तो, अनलिस्टेड हो तो, ओनली द लिमिट्स 25 करोड़ और मोर, 50 करोड़ और मोर। इज इट और मोर और इज इट मोर? इक्वल्स टू मोर और मोर? तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी ये क्रोकोडाइल है, कभी इधर होता है कभी इधर होता है। समझ में आ रहा है? ये क्रोकोडाइल माउथ को याद रखना। अगर इसके नीचे एक और लाइन है तो इक्वल्स टू ग्रेटर देन, और अगर वैसा है तो इक्वल्स टू लेस देन। तो इट मींस एग्जैक्टली अगर 25 करोड़ है तो, लेकिन अगर 24 करोड़ 99 लाख 9,099 है तो रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड? नॉट रिक्वायर्ड। तो इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, बिकॉज देयर आर सम प्लेसेस विल कम वेयर यू हैव टू सी इट ऑन व्हाट? ग्रेटर देन। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अच्छा, हु कैन बी, हु कांट बी? CA CS और CA CMA। तो पहली चॉइस रहेगी CA CMA, आइदर इन प्रैक्टिस और नॉट, एनी अदर प्रोफेशनल, ऑफिसर और एम्प्लॉय, बट मिनिमम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। कौन अपॉइंट करेगा? ऑडिट कमिटी इज देयर, तो रिकमेंडेशन बाय AC, अपॉइंटमेंट बाय BOD। इफ ऑडिट कमिटी इज नॉट देयर, अपॉइंटमेंट एंड रिकमेंडेशन बोथ बाय BOD, to be informed to our ROC within 30 days. Form number MGT 40. What are the 9 things he can't do? Tax audit, GST audit, cost audit, statutory audit. He can't be in the bookkeeping, accounting, financial, executive and managerial decision making. तो भैया आप जब इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हो ना, इवन इफ यू आर अपॉइंटिंग योर ओन एम्प्लॉय as an internal auditor, from that day onwards you can't give him the work which you used to give him as an employee. You have to stop giving him the work as an what? Employee. Because ultimately his designation has changed from being an employee to what? Audit. Even though he is internal auditor to you, but make sure that little bit of independence this person also has to maintain. Because word attached is what? Audit. And audit means which examination? Independent examination. Obviously the level of independence will be lower as compared to what? External. But he has to maintain little bit of dignity of this profession. So company is not allowed
to give him the work which they used to give him before appointing him as an auditor. Right or not? So with that, what is over, everyone? Okay, the next section which we are going to start is going to be the target for today. Let's see whether we are able to achieve it or not. क्योंकि इस section को अपन 3 parts में divide करेंगे. Section number 139 is basically divided into 3 parts. What is the first thing we'll understand? उसके बाद cash vacancy. अब सुनो, section number 139 to section number 139 subsection 6 ये बोलता है अपॉइंटमेंट के बारे में एक्सेप्ट सबसेक्शन 2. अगर इतना डिटेल में नहीं जाना है तो सिंपली समझो कि 139 अलोन टॉक्स अबाउट व्हाट? अपॉइंटमेंट. उसमें से 139 2 टॉक्स अबाउट व्हाट? रोटेशन. उसमें से 139 सबसेक्शन 8 टॉक्स अबाउट व्हाट? कैजुअलिटी. ये याद रख लो. अदर देन सबसेक्शन 2 एंड अदर देन सबसेक्शन 8 एवरीथिंग टॉक्स अबाउट व्हाट? अपॉइंटमेंट. समझ में आ रहा है? तो व्हाट इज सबसेक्शन 2 टॉक्स अबाउट? रोटेशन. सबसेक्शन 8 टॉक्स अबाउट? बस ये 2 सेक्शन याद रखो. रिमेनिंग ऑल आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? तो पहले अपन क्या वाइंड अप करेंगे? अपॉइंटमेंट. अब देखो, अपॉइंटमेंट के केस में क्या हुआ सर? कंपनीज एक्ट ने क्या किया? ऑल द कंपनीज इन इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. ऑल द कंपनीज इन इंडिया हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. पहली और दूसरी नॉन गवर्नमेंट. पहले तो बताओ ह्यूज डेफिनेशन ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी. 3 पेज की डेफिनेशन है. अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ IPO. नाउ लेट्स मूव टू द अनदर वन. व्हाट इज अनदर वन? अब सुनो, गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या है? अ गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी इन विच एटलीस्ट 51% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल इज आइदर हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और कंबाइंडली बाय बोथ. एम आई करेक्ट है? ठीक है. अब देखो, हमने क्या किया? पूरे इंडिया की कंपनीज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, गवर्नमेंट कंपनीज एंड नॉन. अब गवर्नमेंट कंपनी के अंडर वी आर गोइंग टू टच नाउ विच कंपनी नाउ? गवर्नमेंट कंपनी. अंडर द गवर्नमेंट कंपनी वी आर गोइंग टू अगेन फर्दर क्लासिफाई इनटू फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी, subsequent auditor of the government company. What we are going to divide into? And the same concept we are going to apply it into non-government company. तो अपने को 4 लोगों का अपॉइंटमेंट सीखना है. We have to learn the appointment of 4 different people. Who are the 4? First auditor of the government company. Repeat. Subsequent auditor of the government company. First auditor of the non-government company. Subsequent auditor of the foreign. पहले मेरे को बताओ, फर्स्ट एजीएम और सब्सिक्वेंट एजीएम में डिफरेंस क्या है? The first AGM is the AGM which you conduct in the very first financial year from the date of what? Incorporation. जो कंपनी की जो पहली AGM होती है उसे हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट AGM. Every AGM after the first AGM is known as, वही same conceptual clarity you have to put it here. Who is the first auditor? The one who will do the first audit of the freshly incorporated company. That auditor is known as, and after him every auditor is known as subsequent. Clarity आ गया? तो पहले अपन कौन सी कंपनी को वाइंड अप करेंगे? गवर्नमेंट कंपनी. और गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन 2 सबसेक्शन 45 अपने को पता है, इन विच एटलीस्ट 51% ऑफ द वोटिंग राइट और पेड अप शेयर कैपिटल इज आइदर हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और बोथ. तो इसके ऊपर अपन चर्चा नहीं करेंगे, वो तुम हम सब कुछ ऑलरेडी यू हैव डन दैट इन लॉ. अभी अपन गवर्नमेंट कंपनी को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. देखो 2 पार्ट. लेफ्ट साइड पे क्या आ रहा है? राइट साइड पे क्या आ रहा है? सेक्शन याद करने हैं या नहीं करने हैं? मेरे ख्याल से मैंने रॉन्गली लिखा है यहां पे. एक बार चेक करना. 139 सबसेक्शन 7 रिवर्स है ना? देखा, मेरे को लग ही रहा था गलत है. तो 139 सबसेक्शन 7 किसके बारे में बोलता है? फर्स्ट ऑडिटर. और 139 सबसेक्शन 5 किसके बारे में बोलता है? सब्सिक्वेंट. चलो बाद में अगर कुछ भी होता है रेक्टिफाई कर लेंगे, लेकिन अपने को सेक्शन के ऊपर अभी इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है. इतना मालूम है कि 139 है, ठीक है ना? अब सुनो, अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं सर? फर्स्ट. तुम्हें मेरे को ये बात बताओ, तुमने कभी CNDG देखा है? CAG देखा है? CAG फुल फॉर्म पता होगी. इंडिया का CAG कौन है? फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा मैं. अच्छा पहले तो अच्छा चलो राइट फ्रॉम द बेस स्टार्ट करते हैं. CAG क्या है? नेचुरल पर्सन है या इंस्टीट्यूशन है? नेचुरल पर्सन है भाई.
पहले तो मतलब बहुत सारा होमवर्क करना है अपने को। अभी पहले तो मैं तुम्हें सीएजी के बारे में दिखाता हूं। अपने सीएजी कौन है? मिस्टर गिरीश कुमार मुर्मू, दिख रहे हैं? इज अवर सीए। देखो पढ़ो क्या लिखा हुआ है, गिरीश चंद्र मुर्मू। नीचे क्या लिखा हुआ है? डेजिग्नेशन। ये अपने इंडिया के प्रेजेंट सीएनडीजी हैं। सीएनडीजी का मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इस बंदे में और मेरे में इतने डिफरेंस है कि मैं कंपनी का ऑडिट करता हूं, ये कंट्री का ऑडिट करता है। लेवल समझ में आया? ये बंदा इंडिया का ऑडिट करता है। किसका करता है? इंडिया के सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, पीएफ डिपार्टमेंट से लेके, मिनिस्ट्रीज से लेके, बीएचईएल से लेके 6,900 डिपार्टमेंट्स है इंडिया में। कितने हैं? वो सबका गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट ये बंदा करता है। कौन है बंदा? अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सर ये अलोन करता है? नहीं। एवरी February month in a financial year, he gives a public notice and public newspaper advertisement कि I am looking for empanelment of practicing CA's firm. Are you getting the one? अगर आपको CNDG के साथ empanel करना है, if you want to work with the CNDG, you have to have a minimum 11 partners in your firm. उसमें से 4 FC होने चाहिए, 7 AC होने चाहिए। तो ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट्स है। उसके बाद क्या करता है? ये 6,900 कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस, मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, अंडरटेकिंग, जितने भी गवर्नमेंट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस है, ही विल डिस्ट्रीब्यूट इट टू हिज पैनल। मींस वी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विल बी डूइंग द ऑडिट फॉर हिम। एंड वंस अवर ऑडिट विल बी ओवर, like in the normal audit, do we report it to the users of financial statement? Yes. We are not going to report it to the users of financial statement. We'll report it to whom? CNDG. अब CNDG क्या करेगा? उसके बाद 6,900 गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट है। इसका मतलब 6,900 ऑडिट रिपोर्ट्स एंड 6,900 ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ये ने क्या करेगा? कंपाइल करेगा और कंसोलिडेट करेगा। व्हाट ही विल डू? कंसोलिडेट। उसको डिवाइड करेगा 31 स्टेट्स, 6 यूनियन टेरिटरीज एंड 1 यूनियन रिपोर्ट में। ही विल डिवाइड इट इनटू, जैसे मान लो 6,900 में 400 वर तेलंगाना रिलेटेड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, व्हिच वर तेलंगाना। तो वो ऑल द 200 को कंसोलिडेट कर देगा एंड ही विल प्रेजेंट दैट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, आफ्टर हिज सिग्नेचर टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट। टू हुम? और 29 स्टेट्स प्लस 6 यूनियन टेरिटरी का एक फुल कंसोलिडेशन करेगा, जो होता है इंडिया रिपोर्ट। विच रिपोर्ट? उसे बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट रिपोर्ट। विच वन? वो ये लेके जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बताएगा कि भैया अपने इंडिया की बैलेंस शीट में लायबिलिटीज इतनी है, एसेट्स इतने हैं, और इंडिया का प्रॉफिट इतना है, लॉस इतना है, सेल इतना है, परचेज इतना है। तो हम लोग ऑडिट करते हैं। एक्चुअली ही डजंट डू द ऑडिट, but we send our audit report and audited financial statements to whom? CAG. CAG क्या करता है? Consolidate. What is the main function of CAG? Consolidate. State-wise reports he will put it in front of GOS. What is GOS? Governor of State. India level report he will put it in front of whom? President of India. और जो यूनियन टेरिटरी की रिपोर्ट्स होती है, he will put it in front of Chief Administrator of UT. What is the name? अब I don't think so that looking at your faces you were aware of this. This is where the auditing starts. अपने को इतना डीपर एग्जामिनेशन जरूरी है। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑडिट स्टार्ट करने से पहले यू शुड फर्स्ट नो कि गवर्नमेंट ऑडिट करता कौन है। कौन करता है भैया? सीएनडीजी। तो इंडिया का प्रेजेंट सीएनडीजी कौन है? ये हुए थे अपने कोविड के टाइम पे अपॉइंट हुए थे ड्यूरिंग द अगस्त 2020, और सीएनडीजी का टर्म होता है 6 years। हाउ मेनी ईयर्स? तो मतलब 2026 तक दिस फेलो इज गोइंग टू बी योर CAG ऑफ इंडिया। आर यू गेटिंग? उसके बाद ही विल गो समबडी एल्स, लाइक अ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट होती है ना, वैसे ही इज वेरी मच नियर टू देम। बहुत ही पावरफुल पर्सन है। दिस इज कॉल्ड, और इसका अगर आप रेज्यूमे पढ़ोगे तो 3.5 पेजेस का रेज्यूमे है। और अगर आप क्वालिफिकेशन पढ़ोगे तो मिनिमम एनेक्स्चर लगा हुआ है क्वालिफिकेशन का पीछे। अभी यहीं पे थोड़ा सा पढ़ना है तो पढ़ लो, इसने क्या क्या काम किया पढ़ो भाई। प्रायर टू बिकमिंग दिस, वो जम्मू कश्मीर में भी काम कर चुका है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम कर चुका है, एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट, पता नहीं कहां कहां काम कर चुका है। और ही इज द यंगेस्ट वन, ही इज द यंगेस्ट CNDG ऑफ इंडिया। एज है कुछ 60 years कुछ होगा।
तो 60 ही यंगेस्ट है भाई, क्योंकि सी एंड एजी के लेवल तक पहुंचने के लिए आपके ये उड़ जाते हैं, ये भी चली जाती है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मतलब ये इसकी पोजीशन पे पहुंचना, मतलब सी एंड एजी पोजीशन इज लाइक द सुप्रीम पोजीशन। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, इज द जज ऑफ व्हाट? सुप्रीम कोर्ट, जो सबसे बड़ा अथॉरिटी है। द वन ही विल पास द ऑर्डर, बियॉन्ड देयर एनी काइंड ऑफ अपील इज देयर नो अपील। तो ये वही है, ही इज द एक्मे पोजीशन होल्डर व्हेन इट कम्स टू द ऑडिटिंग ऑफ इंडिया। ये इंडिया का ऑडिट करते हैं। किसका ऑडिट करते हैं? और ये तो अभी लेस क्वालिफाइड है। जो पास्ट सी एंड एजी थे अपने विनोद राय, सॉरी पास्ट वन वाज शशिकांत शर्मा, बिफोर दैट इट वाज विनोद राय। विनोद राय इज राइट नाउ द इंटरनल ऑडिटर ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन, और उसका इंटरनल ऑडिटर है अभी वो। तो मतलब बीइंग एन इंडियन सी एंड एजी, और सबसे इनकी सैलरी इज नॉट दैट मच, इनका सिर्फ 2,50,000 रुपीज पर मंथ का सैलरी होता है। इट इज नॉट दैट मच, हार्डली 30 lakhs ऑफ पैकेज इन अ ईयर। बट इनको जो बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइफ टाइम फ्री ट्रेवल, लाइफ टाइम फ्री हाउस। आदमी कमाता किसके लिए? यही चीज, वो सब कुछ इनको क्या है? फ्री। रिटायरमेंट के बाद भी फ्री है टिल योर डेथ। और मेरे ख्याल से जो 2.5 lakhs आता होगा ना इसको पर मंथ, उसमें से 2,000 रुपए का खर्चा होता होगा, वो भी कभी बाहर से स्विगी विगी मंगाया तो। भाई खर्चे ही किया है। घर के नौकर सारे इनको मिलते हैं, सर्वेंट, पेट्रोल एक्सपेंडिचर, गाड़ियां इनके पास, लाल बत्ती वाली गाड़ी इनके पास, बंगलो इनके पास, एयर ट्रेवल फ्री, ट्रेन ट्रेवल फ्री, सारा ट्रेवल फ्री, क्या बोलते हैं फॉरेन ट्रेवल फ्री, सब कुछ तो फ्री है। मस्त शादी करो, खत्म, सेटल है भाई काम। तो इनके लिए अच्छा, ये वो लोग होते हैं दोज हु आर हाईली रिच फ्रॉम द बैकग्राउंड। क्योंकि ट्राई टू अंडरस्टैंड, if this person will be bribed, the whole India will be in danger. समझ रहे हो? मतलब ये कंपनी का ऑडिट नहीं कर रहा, ये कंट्री का ऑडिट कर रहा है। ये बंदा ब्राइब नहीं होना चाहिए। दिस पर्सन शुड नॉट बी अ करप्टेड फेलो। तो इसलिए सी एंड एजी बनने के लिए यू हैव टू पास थ्रू सो मेनी टेस्ट ऑफ इंटीग्रिटी, डिग्निटी, ट्रस्टवर्दीनेस। ये सारी जो मतलब जिसको अपन समझते हैं ना कि इंडिया का एक रोल मॉडल है, जैसे एन नारायण मूर्ति सर है इन्फोसिस के, ही इज अ जेम। और नंदन नीलकानी है, ही इज अ जेम। क्या बोलते हैं अपना पुराना एक्स गवर्नर ऑफ आरबीआई, क्या नाम था? अरे राजन थे ना कुछ, रघुराम राजन। हाँ, और अभी जो अभी राइट नाउ द लेडी ऑफ एमसीए हेड जो निर्मला सीतारमन। दीज काइंड ऑफ पीपल डिजर्व टू बी व्हाट? सीएनए। और इसके लिए, और अनफॉर्चुनेट थिंग इज दैट नॉट इवन अ सिंगल चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज रीच्ड टू दिस लेवल। मतलब बंदा देखो पूरा ऑडिटर ऑफ व्हाट क्या है? कंट्री है, बट नॉट इवन अ सिंगल सीए। दे आर नॉट क्वालिफाइड सीएस, दे आर आईएएस, आईपीएस, आईआरएस काइंड ऑफ पीपल। मतलब इसका रेज्यूमे पढ़ोगे ना तो तुम्हें मिनिमम हाफ एन आवर चाहिए। उतनी देर में तुम्हारा शेयर कैपिटल चैप्टर हो जाएगा लॉ का, जितने में इसका रेज्यूमे पढ़ोगे। So before starting the government company, you should know something about this person called what? CNA. अब ये तो पता चल गया कि ये नेचुरल पर्सन है, जो तुम्हारे अंदर डाउट था। मैंने तुम्हें वही तो पूछा था पहले कि डू यू थिंक दैट ही इज एन इंडिविजुअल पर्सनालिटी और इज एन इंस्टीट्यूशन? तो यू ऑल हैड एन आइडिया। दैट इज व्हाट इज नॉट बीइंग टोल्ड टू यू इन लॉ, क्योंकि वहां पे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। वहां पे तुम्हें सर ने क्या बताया होगा? भाई गवर्नमेंट कंपनी है, उसका ऑडिट सी एंड एजी करते हैं। ना तुमने पूछा होगा ना उन्होंने बताया होगा कि सी एंड एजी क्या है, भगवान है, क्या है, क्या, कौन अपॉइंट करता है किसको। ये सब कुछ अपन कहां पे पढ़ते हैं? ऑडिटिंग, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है। अब समझ में आया? तो भाई मतलब ध्यान से देख लो, दिख रहे हैं तो मतलब आप देखो यार, पूरे इंडिया का ऑडिट, मतलब पूरे इंडिया का बैलेंस शीट के ऊपर इनो साइन करते हो हैं। क्या पावर है। नहीं, अपन बोलते हैं अपना सिग्नेचर पावरफुल है, अपने से भी इनका सिग्नेचर। और ये डायरेक्ट रिपोर्टिंग टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा वैसे ही दिख रहे नहीं? आज देखें कहीं सेवॉन तो नहीं लिखा हुआ कहीं पे? नहीं, रौनक सर डिजर्व्स टू बी एन सीएडी, इज अ वेरी जेन्युइन पर्सनालिटी। क्या हुआ? मैं नहीं हंस रहा हूं, आई एम नॉट स्माइलिंग, यू पीपल आर स्माइलिंग। इज अ गॉड एक्चुअली। हाँ,
हमने पढ़ाना ही रौनक सर से सीखा है। हाँ, मतलब ही टॉट मी, रोहित कम दिस साइड, आई विल टीच यू हाउ टू टीच। मैंने कहा सर प्लीज, मैंने कहा गुरु दक्षिणा, नहीं नहीं यू टीच, दैट इज गुरु, इज अ गॉड एक्चुअली। चलो, लेकिन थोड़े थोड़े उनके जैसे दिख रहे हैं, तो हो सकता है तुम्हारे ग्रैंड चिल्ड्रन रौनक सर को देखे यहाँ पे, या तुम्हारे चिल्ड्रन। चलो एनीवेज, अब मेरे को असिस्टेंट की पोस्ट भी बस है, मेरे को सीएनडीजी नहीं बनना, मेरे को असिस्टेंट टू सीएनडीजी बना दो बस है। नहीं तो एक काम करो, सिर्फ एक रिलायंस का ऑडिट दिलवा दो बस है, और चाहिए नहीं लाइफ में, कुछ नहीं चाहिए। चलो समझ में आया भैया। तो अब अपनी यहां से जर्नी स्टार्ट होती है कि भैया ऑडिट, गवर्नमेंट कंपनी का विच ऑडिटर वी आर टॉकिंग अबाउट, फर्स्ट ऑडिट। तो पॉइंट नंबर 1 पढ़ो, इसे अपॉइंट कौन करता है, सीएनडीजी। तो ये भाई साहब आपको अपॉइंट करेंगे एज अ फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द विच कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। सर व्हेन ही इज गोइंग टू अपॉइंट यू, within 60 days from the date of incorporation. What is the time period? When the government company gets newly incorporated, उसके 60 days के अंदर अंदर आपको कौन अपॉइंट करेगा, CNDG as a first auditor of the company. Tell me 4 points you. Time period. Sir, 60 days are over and CNDG forgot. Then in that case, this power will be given to whom? Board of Directors. तो अगर सीएनडीजी फेल हो जाता तो हु विल अपॉइंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन द नेक्स्ट हाउ मेनी डेज, 30। और अगर सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी फेल हो जाते हैं तो इन दैट केस मेंबर्स विल कंडक्ट अ जनरल मीटिंग एंड शैल अपॉइंट यू विद इन 60 डेज। बट एक काम याद रखना, मतलब दिस इज वेयर द बेसिक नॉलेज इज रिक्वायर्ड। यहां पे वर्ड क्या लिखा हुआ है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब दिस 60 ऑलरेडी इंक्लूड्स व्हाट, 30। समझ में आ रहा है? इसका मतलब फर्स्ट 60 डेज आर गिवन टू होम, सीएनडीजी। सीएनडीजी के 60 डेज आर ओवर, हु विल अपॉइंट नेक्स्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन द नेक्स्ट हाउ मेनी डेज, 30। तो ये हो गया 90। तो ये 90 डेज ओवर होने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आल्सो डिड नॉट अपॉइंट, तो इसका मतलब द शेयर होल्डर एग्जैक्टली हैव नेक्स्ट 30 डेज। बट वी विल नॉट राइट द वर्ड नेक्स्ट 30 डेज, विल यूज द वर्ड विद इन 60 डेज। तो दिस 60 डेज ऑलरेडी इंक्लूड्स द फर्स्ट 30 डेज। अब मेरे को ये बताओ, चेन बताओ, हम किस ऑडिटर की बात कर रहे हैं, first auditor of which company, who appoints within 60 days from the date of incorporation, fails to appoint in the next 30 days, fails to appoint members in the general meeting within 60 days. Sir, इसका tenure क्या होगा, first auditor of government company का, his tenure will be from the date of appointment till the conclusion of which AGM, जिस दिन तुम्हारी फर्स्ट एजीएम कंप्लीट हो जाएगी, द फर्स्ट ऑडिटर टेन्योर विल बी ओवर। वहां से सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स विल स्टार्ट। विच ऑडिटर? तो फर्स्ट ऑडिटर टेन्योर इज नॉट फॉर 5 years, इट इज ओनली फॉर 1 year इनडायरेक्टली टिल द कंक्लूजन ऑफ व्हाट, फर्स्ट एजीएम। अच्छा, तो ये फर्स्ट ऑडिटर के बारे में कोई डाउट और नो डाउट? नो डाउट। व्हाट इज द नेक्स्ट ऑडिटर नाउ? अब सुनना इसे ध्यान से, सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ अगेन विच कंपनी, तो ऑब्वियसली हु विल अपॉइंट, बट व्हाट इज द टाइम पीरियड, विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ व्हाट, फाइनेंशियल ईयर। आपको विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विल बी अपॉइंटेड। अब ये बताओ विच फाइनेंशियल ईयर इज गोइंग ऑन, मैं बीएचईएल कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट करना है मेरे को, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, व्हाट इज द टाइम पीरियड, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट। ये फाइनेंशियल ईयर ऑलरेडी कमेंस हो चुका है। 1 अप्रैल से अगर अपन एग्जैक्टली 180 डेज ऐड कर दे तो अप्रोक्सीमेटली 30th सितंबर, तो 30th सितंबर 2020 तक सीएनडीजी हैज अ टाइम टू अपॉइंट द विच ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, हु विल ऑब्वियसली डू द ऑडिट ऑफ विच फाइनेंशियल ईयर, बट आफ्टर द एंड ऑफ, तो अपॉइंटमेंट ऑलवेज कम्स फर्स्ट, ऑडिट कैरीज आउट लेटर। ऑडिट कब होता है, बाद में होता है, पहले हम किसको अपॉइंट करते हैं, ऑडिटर। तो ऑडिटर को एडवांस में अपॉइंट करते हैं सो दैट ही कैन डू द प्लानिंग एंड स्टफ, एंड बाय द ईयर एंड ही विल बी रेडी टू डू व्हाट, ऑडिट। क्रिस्टल क्लियर है, समझ में आ गया? और रिमेंबर यहां पे देयर इज नो डेफरमेंट हियर, ओनली हु विल अपॉइंट, सीएनए, नो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नो मेंबर्स अलाउड, स्पेशली इन केस ऑफ विच ऑडिटर, सब्सिक्वेंट। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, सर इसका टेन्योर क्या होगा, विच ऑडिटर, इसका टेन्योर होगा डेट ऑफ अपॉइंटमेंट टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। तो व्हाट वाज द टेन्योर ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर, टिल द फर्स्ट एजीएम, एंड व्हाट इज द टेन्योर ऑफ दिस पर्सन, till the next AGM, till the next AGM, like that
every AGM government company auditor will be changed. And one more thing, government company के ऊपर 5 years concept does not apply. 5 years concept of auditor only and only applies in case of which company? Non-government. And that too the subsequent auditor of non-government company. First auditor can never be appointed for 5. He can be reappointed again. So 1 year will be separate, that is the first, and remaining 5 years will be what? Separate. But he cannot continuously be appointed for 5 years. There is only one person on this planet who can be appointed for 5 years. Subsequent auditor of a which company? Non-government. तो इसका मतलब who three can't be? First and subsequent auditor of government company and first auditor of a non-government company can never be appointed for 5 years. Who is only appointed? Subsequent auditor of a government. अब तो मुझे बताओ, half of the section number 139 is already over. तो मुझे ये बताओ हमने कौन सी कंपनी वाइंड अप कर दी? गवर्नमेंट. तो अभी एब्जॉर्ब करेंगे पूरे चार्ट को अंदर, ठीक है. वाइंड गवर्नमेंट कंपनी में 2 पार्ट्स, फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट. First auditor to be appointed by C&AG within 60 days from the date of incorporation. C&AG failed, board of directors. Within the next 30 days. Board of directors failed, members in the general meeting within 60 days. Tenure from the date of appointment till the conclusion of first AG. Move to the subsequent auditor to be appointed by any deferment or no deferment within 180 days from the commencement of financial year. इसका ड्यूरेशन फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट वीक. तो गवर्नमेंट कंपनी अपनी सॉर्टेड है, समझ में आया. अब अपन बात करेंगे कौन सी कंपनी की? नॉन गवर्नमेंट. नॉन गवर्नमेंट कंपनी में भी 2 ऑडिटर, विच इज द फर्स्ट वन फर्स्ट ऑडिटर एंड द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड सब्सिक्वेंट. अब सुनो, अभी अपन करेंगे कंपैरेटिव मोड में, सो दैट दिस चार्ट विल बिकम परमानेंट इन योर हेड. फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी किसने अपॉइंट किया था? यहां पे कौन कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. विद इन हाउ मेनी डेज? From the date of, within how many days? 30 days. From the date of, so what are the 2 changes you found? C&AG, board of directors, 60 days, 30 days. वहां पे if the C&AG fails, who? तो यहां पे if the board of director fails, who? Members. अब बताना मेरे को ध्यान से बताना. When the board of director failed there, who? Member. Within, here when the board of director fails, who? Member. Within 90 days. Within how many days? इसका मतलब these 90 days already includes the first 30 days. It means indirectly next 60 days. Correct है? तो differences बताओ क्या पता चले. वहां पे C&AG, यहाँ पे board, वहां पे within 60 days from the date of incorporation, 30 days from the date of incorporation. There the board fails, who appoints? Member. In the general meeting within 60 days. Here the board fails, who appoints? Member. In the EGM, in the what? क्यों EGM? यहां पे AGM क्यों नहीं आया? सर AGM तो अभी हुई नहीं. कौन सा ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं अपन? फर्स्ट. AGM तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के एंड के बाद विद इन 9 months होगी. आई होप यू नो सेक्शन नंबर 96. So first AGM of the company gets conducted within 9 months from the end of the financial year without any ROC extension. Am I correct or not? तो AGM का वेट नहीं करेंगे. अच्छा, EGM में E stands for what? Board succeeded और board failed. तो भैया वो useless fellow people failed. तो अब तो मुझे बताओ, do you think that the company will wait for the AGM? So it is an emergency situation or not? तो ordinary situation was board to be appointed. अभी extraordinary situation has come. Therefore we are going to conduct what? EGM. And within how many days? 90 instead of 60. Here 90 already includes what? First. तो जल्दी से पढ़ लो क्या दिया हुआ है. By the board within 30 days from the date of incorporation. If the board fails, then the members in the EGM shall appoint within 90 days. Bracket में क्या लिखा हुआ है? Next. अच्छा, इसका tenure क्या होगा? Same like government auditor. From the date of appointment till the first AGM. First AGM में बंदा चले जाएगा. और जो वही AGM में next बंदा आएगा वो कौन है? सब्सिक्वेंट. इसका अच्छा मैं थोड़ा कनेक्ट करता हूं. ही इज अपॉइंटेड, ही इज गोइंग टू होल्ड योर ऑफिस एज अ फर्स्ट ऑडिटर टिल विच डेट? फर्स्ट AGM. इन द सेम AGM members are sitting. Members will bring someone else. Who is that auditor? Subsequent auditor. And from this AGM till the 6th AGM, from this AGM till the 6th AGM,
दैट ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. खत्म. दैट इज कॉल्ड सेक्शन नंबर 139. अब ये देखो एरो देखो कहां पे जा रहा है. पहले ये बताओ टेन्योर कहां तक था. फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एज. ये एजीएम में कौन बैठे हुए हैं. इन द एजीएम हु इज सिटिंग. मेंबर्स. Members will appoint the new auditor to hold the office till the conclusion of for a period of what. देखो सर फर्स्ट एजीएम टू सेकंड एजीएम 1 year, सेकंड टू थर्ड 2 years, थर्ड टू फोर्थ 3 years, फोर्थ टू 5 4 years एंड फिफ्थ टू सिक्स्थ 5 years. उस 5 years के बाद दिस subsequent auditor will rotate. There comes the section number 139 subsection 2. That is called rotation of auditors. Connection समझ में आ रहा है. चलो I think 4 auditors are there in your pocket right now. Now I will ask you jumbled. पहले तो बताओ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनी में डिफरेंस. अ गवर्नमेंट कंपनी इज वन इन विच एटलीस्ट 51. तो जैसे ही अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले तो अपने को ये आइडेंटिफाई करना है कि आर दे टॉकिंग अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंटिटी और नॉन. अब मैं तुम्हें एक छोटा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन डालता हूं. आई थिंक यू विल बी एबल टू मैनेज इट. इफ नॉट एनीवेज आई एम देयर टू लेट यू नो वेयर यू आर फॉलोइंग. अब सुनना ध्यान से. एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड. व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी. एबीसी लिमिटेड में टोटल 100 करोड़ कैपिटल है. कितना है. 100 करोड़ का पेड अप शेयर कैपिटल है. उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है 25 करोड़. तेलंगाना गवर्नमेंट के पास है 15 करोड़. ठीक है. आंध्रा गवर्नमेंट के पास कितना है. आंध्रा गवर्नमेंट के पास भी 15 करोड़ नहीं है. उसके बाद 10 करोड़ है. कितना करोड़ है. और बीएचईएल मालूम है. बीएचईएल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल सर्विस. दैट इज ऑल्सो विच कंपनी. गवर्नमेंट कंपनी. तो ये गवर्नमेंट कंपनी जो है ना इसके पास 3% है. इज दिस एबीसी लिमिटेड अ गवर्नमेंट कंपनी. तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है लॉ के. तुम ऑडिटिंग कैसे कॉन्कर करोगे. बताना मैं यस कैसे. हमें 50% चाहिए एटलीस्ट 51%. एटलीस्ट टोटल करना. अब इन्हों अंदर से सोच रहे होंगे सर टोटल कर लिया 53 है. आप पागल बना रहे हो. गवर्नमेंट कंपनी है मां. किसने बोला था यस. पहले ये बताओ. देखा अब कोई मुंह नहीं खोला. यस इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी. बताना कैसे. तो मेरे को ये बताओ. पहले तो बताओ सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 45 पढ़ा कभी. वहां पे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि गवर्नमेंट कंपनी शुड होल्ड. वहां पे लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और कंबाइंडली बाय बोथ. नोवेयर इट इज रिटन दैट कि कंट्रीब्यूशन शुड बी मेड बाय एनी गवर्नमेंट कंपनी आल्सो. तो इसका मतलब बीएचईएल को कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे इन सबका टोटल. तो हमें तो कितना चाहिए 51. तो भैया नो इट इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी. तो ये कौन सी कंपनी है. तो इसके अंदर 139 सबसेक्शन 6 और 139 सबसेक्शन 1 लग जाएगा. अब यहां पे आके तुम्हारी टेस्टिंग होती है. क्योंकि मैंने तुम्हें क्या बताया ऑडिटिंग का पेपर नंबर 6 क्यों है. आज सुनो लॉजिक. मैंने तुम्हें डे 1 को भी बताया था. दे वॉन्ट यू टू हैव एन एक्सपर्ट नॉलेज इन द फर्स्ट 5 सब्जेक्ट. क्योंकि वो 5 सब्जेक्ट को अपन टेस्ट कौन से पेपर में करते हैं. ऑडिटिंग. आपका अगर लॉ ही स्ट्रांग नहीं है तो आप ऑडिटिंग को कॉन्कर नहीं कर सकते. ये तो मैंने अभी ऑडिटिंग का क्वेश्चन नहीं पूछा. मैंने तुम्हें अभी लॉ का क्वेश्चन पूछा है बेसिक कि भैया ये गवर्नमेंट का. इसके बेसिस के ऊपर मेरे ख्याल से 99.99% ऑफ यू माइट हैव सेड इट एज अ गवर्नमेंट कंपनी और तुम लिख के आ जाते फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड बाय दिस एंड दैट ब्ला ब्ला ब्ला. घर पे आके मस्त फैल के सो रहे हो. हाँ जब एग्जाम में रिजल्ट आया तब 39. तो आत्मा होगी परमात्मा से. समझ में आ रहा है. अब यहां पे आके माइनर मिस्टेक क्या करनी है. दिस इज कॉल्ड रीडिंग स्किल्स. दिस इज कॉल्ड व्हाट. तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम रीड क्या कर रहे हो. वहां पे गवर्नमेंट इज रिटन. नोवेयर रिटन दैट गवर्नमेंट कंपनी. तो ये बीएचईएल विल बी कंसीडर और विल नॉट बी. तो इट इज नाउ विच कंपनी. अब बताओ इसका फर्स्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. देखो अगर तुम गवर्नमेंट कंपनी लिख देते तो तुम क्या लिख के आते. C&AG 60 days. फेल्ड बोर्ड विद इन 30 days. फेल्ड मेंबर विद इन 60 days. लेकिन एक्चुअल आंसर क्या है. बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 days from the date of incorporation. Board failed members in the EGM within 90 days. Tenure from the date of appointment till the conclusion of. अरे अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है. अभी तो शुरुआत है. चलो एक और ट्रबल मेकिंग क्वेश्चन डालेंगे.
and give me the wrong answer. Okay. XYZ Limited is a non-government company. पहले ही बताता हूं. It's a which company? Non-government company है. ठीक है. ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 7/1/2022 को. कब इनकॉर्पोरेट हुई? 2021 को ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई. ठीक है. इसका तुम्हें मेरे को दो आंसर देने. डेट ऑफ मतलब when the first auditor should be appointed, that is a question number 1, and when the first AGM will be conducted, that is a question number 2. This is the date of incorporation. This is the information I can give. First auditor is to be appointed. पहले तो बताओ ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, मैं फर्स्ट ऑडिटर पूछ रहा हूं. फर्स्ट ऑडिटर इज टू बी अपॉइंटेड बाय whom? Within 30 days will start from this date. मेरे को बताओ. तो बाय 6/2/2022 फर्स्ट ऑडिटर मस्ट बी अपॉइंटेड. ठीक है. अब हमने डेट ऑफ अपॉइंटमेंट तो समझ में आ गई. ये होगी अपनी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम. तो भैया ये बताओ इसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31 मार्च 31 मार्च. जल्दी से उल्टी करो, जल्दी जल्दी. 22 या 23? क्यों 23? क्योंकि दिस कंपनी गॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी. कोई भी कंपनी जब जनवरी, फरवरी और मार्च में इनकॉर्पोरेट होगी तो कमिंग मार्च इज नॉट द फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट मार्च. तो इसके 31/3/2023. इसमें अपन कितने मंथ्स ऐड करेंगे? 9 मंथ. तो इसका मतलब इसका लास्ट डे बनता है. समझ में आ रहा है? तो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से लेके यहां तक दिस ऑडिटर विल बी एज एक्टिंग एज अ विच ऑडिटर? फर्स्ट ऑडिटर. समझ में आ रहा है? इसका मतलब वो लॉ को और ऑडिटिंग को मिक्स करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. इट मींस यहां पे तुम्हारी दो चीजें टेस्ट होगी. हाउ टू कैलकुलेट द डेट ऑफ द फर्स्ट एजीएम इज ऑल्सो टेस्टेड, एंड टिल व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर, दैट इज ऑल्सो व्हाट टेस्टेड. बट विल योर आंसर चेंज इफ इज अ सब्सिक्वेंट ऑडिटर? Subsequent auditor will be appointed in the which AGM? First AGM. And he will be holding the office till the conclusion of which AGM? For a period of how many years? After that, can he continue? Or he has to rotate under section 139, subsection 2. अब पूछूं questions? मैं क्या बताओ? How to appoint the subsequent auditor of the government company? By the C&AG within till the conclusion of next stage. How to appoint the subsequent auditor of the non-government company? By the members in the AGM till the conclusion of 6th AGM for a period of 5 years. How to appoint the first auditor of the non-government company? By the board of directors within 30 days if failed by the members within 90 days in the EGM till the conclusion of first AGM. And how to appoint the first auditor of the government company? By the C&AG within 60 days if failed by the board of directors within next 30 days if failed by the members in the general meeting within 60 days till the conclusion of first stage. तो अपने को अपॉइंटमेंट के बारे में कोई डाउट नहीं है अभी. एम आई करेक्ट और नॉट? अपॉइंटमेंट अपना सुपरबली क्लियर हो गया. अब मेरे को ये बताओ, तुम डायरेक्टली अपॉइंट कर दोगे ऑडिटर को? ऐसा नहीं होता. ऑडिटर नेवर गेट्स अपॉइंटेड डायरेक्टली. First, auditor has to make some 4 declarations with the company. How many? तो जैसे से फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकली कैसे होता है? सपोज मेरे को एबीसी लिमिटेड ने कांटेक्ट किया, रोहित सर आपको हमको स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट करना है. तो मैं बोलूंगा पहले मैं इनिशिएट करूंगा. आई विल टेक माई लेटर हेड एंड आई विल सेंड देम द 4 declarations in writing on my letterhead. Declaration number 1, sir, I am not disqualified under section 141 subsection A. It means I am qualified to be your auditor. Declaration number 2, sir, after accepting your company audit, I am still within my which limit? Ceiling limit. Under section 141 subsection 3 clause G. उसके बाद मैं थर्ड डिक्लेरेशन कर रहा हूं कि आई अंडरस्टूड व्हाट यू सेड, आई एक्सेप्ट योर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ व्हाट अपॉइंटमेंट. मैं को रेडी हूं. और मैंने लास्ट में क्या डिक्लेरेशन दूंगा कि सर नाइदर मी नॉर माय फर्म नॉर माय पार्टनर, रिपीट द 3 वर्ड्स, नाइदर मी नॉर माय फर्म नॉर माय पार्टनर
have any kind of pending litigation or claim or case against us in any high court or Supreme Court or ICA or any statutory body in India at present. We are the clean sheet persons. We are the what? हमारे अगेंस्ट कुछ भी नहीं चल रहा. No case is going against us. तो ये 4 डिक्लेरेशन देने के बाद अपॉइंटमेंट होता है. समझ में आ रहा है? तो एक्चुअली आई एम टेलिंग यू एट द सेकंड प्लेस, बट एक्चुअली आई शुड हैव टोल्ड यू दिस एट द फर्स्ट प्लेस. तो दिस हैपेंस फर्स्ट बिफोर अपॉइंटमेंट. आर यू गेटिंग? दैट इज व्हाई व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉपिक? बिफोर अपॉइंटमेंट क्या होता है? मेरे को ये बताओ, हु इज सेंडिंग दिस डिक्लेरेशन टू होम? ऑन हुज लेटर हेड? 4 डिक्लेरेशन बोलनी. सर आई एम नॉट डिस्क्वालिफाइड, आई एम नॉट ब्रीचिंग माई सीलिंग लिमिट, sir I understood and accept your terms and conditions, and me, my partner, my firm are not having any kind of pending litigation and cases against us in any court in India or ICA or any statutory authority. हम लोग क्लीन चिट पर्सन है. उसके बाद ये प्रोसेस शुरू होता है 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज वाला प्रोसेस. अब समझ में आ गया? अब अपन करेंगे लास्ट टॉपिक. व्हाट इज द लास्ट टॉपिक? वंस द ऑडिटर इज अपॉइंटेड. देखो आपने क्या क्या समझ लिया. बिफोर द ऑडिटर इज अपॉइंटेड समझ लिया, एट द ऑडिटर इज अपॉइंटेड समझ गया. अभी अपन क्या करेंगे? आफ्टर द ऑडिटर इज अपॉइंटेड. अब जब हमने इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट किया था, डिड वी इंटीमेट टू अवर चाची? कौन थी अपनी चाची? तो चाची बोल रही मेरे को स्टैट्यूटरी ऑडिटर के बारे में भी बताओ. तो अपन क्या करेंगे? अपन 2 लोगों को इंटीमेट करेंगे. वी आर अ कंपनी, वी आर गोइंग टू इंटीमेट 2 पीपल. वन, वी आर गोइंग टू इंटीमेट फॉर्मली नाउ टू द ऑडिटर कि यू हैव बीन अपॉइंटेड एज अ विच ऑडिटर? स्टैट्यूटरी ऑडिटर. Within 7 days from the date of AGM. How many days? Or to the ROC within 15 days. To the auditor within 7 days from the date of AGM. To the ROC within 15 days. But when we are intimating to the ROC within 15 days, we will intimate to the ROC in form number ADT1. What is the form number? समझ में आ गया? तो ये कब हुआ? बिफोर अपॉइंटमेंट, एट द अपॉइंटमेंट और पोस्ट अपॉइंटमेंट. तो हमने पूरे सेक्शन नंबर 39 को 3 पार्ट में डिवाइड किया. बिफोर, एट, आफ्टर. तो बिफोर क्या हुआ? 4 डिक्लेरेशन. एट हमने 4 अपॉइंटमेंट्स पढ़ ली. एंड आफ्टर वी आर इंटीमेटिंग टू द 2 पीपल, वन टू द ऑडिटर, वन टू द आरओसी. टू द ऑडिटर विद इन एंड टू द आरओसी विद इन 15 डेज. फॉर्म नंबर एडीटी. एडीटी स्टैंड्स फॉर ऑडिटर. अब सुनना ध्यान से जो मैं नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा हूं. तुमने केयरफुली ऑब्जर्व की एक बात विच नोबडी टेल्स यू. यहां पे टाइम पीरियड कहां से स्टार्ट हो रहा है? अपॉइंटमेंट इन द. इसका मतलब ये सिर्फ इंटीमेशन 4th केस में एप्लीकेबल है. गवर्नमेंट के केस में ये एप्लीकेबल ही नहीं है. फर्स्ट ऑडिटर और नॉन गवर्नमेंट केस में भी दिस इज नॉट एप्लीकेबल. इट इज ओनली एप्लीकेबल इन व्हाट? 4th केस. क्यों? क्योंकि ही इज द ओनली ऑडिटर हु गेट्स अपॉइंटेड इन एजीएम. और कोई भी ऑडिटर एजीएम में अपॉइंटेड नहीं होता. अच्छा ये बताओ, फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट का CNAG विद इन 60 days from the date of what? Is he appointed in AGM? No. Subsequent auditor of the government company, CNAG, within 180 days from the date of commencement of financial year. Is he appointed in the AGM? No. First audit of the non-government company, board of directors, within 30 days from the date of incorporate. He is also not appointed in the AGM. There is only one person who gets appointed in the AGM, subsequent auditor of the non-government company. इसका मतलब ये जो formality है, when we are intimating to the ROC, it is only and only applicable in which case? Subsequent auditors of the non-government company. Simple. इसे बोलते हैं interpretation of statutes. ऐसे अपन लॉ को पढ़ना सीखना है, ठीक है ना? With that, you will see the true intention of the lawmaker, why he created this provision. समझ में आ रहा है सर? हाँ के ना? And that is the reason first 3 auditors के ऊपर 5 years applicable और non applicable. चाची इंटरेस्टेड भी नहीं है. चाची बोल रही कैसे भी फर्स्ट एजीएम नेक्स्ट एजीएम तक निकल जाएंगे. मेरे को वो वाला बच्चा दिखाओ जो तुमने 5 साल के लिए अपॉइंट किया. अपना वो वाला बच्चा कौन है? सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ अ विच कंपनी. तो चाची बोल रही मैं तो उसको शगुन देने आऊंगी. समझ में आ रहा है? तो चाची इज नॉट इंटरेस्टेड इन फर्स्ट 3, शी इज ओनली इंटरेस्टेड इन लास्ट वन, सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी. इज इट क्लियर एवरीवन? तो ये हो गया अपना सेक्शन नंबर 138 एंड 139 का फर्स्ट पार्ट. तो व्हाट वी आर डन विद एवरीथिंग अबाउट व्हाट? 2 मिनट में रिवाइज करेंगे सो दैट आई कैन बी एश्योर्ड कि इट इज परमानेंट नाउ इन योर हेड. पॉइंट नंबर 1, हमने कंपनीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया. क्या? गवर्नमेंट कंपनी में 2 ऑडिटर,
पहले फर्स्ट ऑडिट ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी बताओ. बाय द CNAG within 60 days from the date of incorporation. Failed board of director in the next 30 days. Failed members in the general meeting within 60 days till the date of first AG. So the subsequent audit of the government company बनाया by the CNAG within 180 days from the commencement of financial year till the conclusion of the next AGM. अभी नॉन गवर्नमेंट कंपनी फर्स्ट ऑडिटर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 days. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल्ड, then the members within 90 days, and he is going to hold the office till the conclusion of the first AGM, and in the same AGM will appoint the subsequent auditor till the conclusion of sixth AGM for a period of 5 years by the members. Before getting appointed, I have to send the 4 declaration to the company. I'm not disqualified. I'm not breaching my ceiling limit. Neither me, nor my partner, nor my firm is having any kind of pending cases against us. We are the clean sheet person and we understood your terms and condition. We are ready to accept your audit. उसके बाद हमको एक फॉर्मल अपॉइंटमेंट लेटर आएगा विद इन 7 days फ्रॉम द एजीएम, और सेम अपॉइंटमेंट लेटर जाएगा किसके पास, बट किसके साथ अटैच करेंगे, ADT1 विद इन 15 days. अपॉइंटमेंट में कोई डाउट? आज कुछ नया सीखने को मिला. अब ये पता चला CNAG आर्टिफिशियल पर्सन नहीं है, इज अ विच पर्सन. और इंडिया के CNAG कौन है? गिरीश चंद्र कुमार मुर्मू. गिरीश कुमार चंद्र मुर्मू था या गिरीश चंद्र? हाँ, गिरीश चंद्र कुमार मुर्मू. मुर्मू तो अपने खाने वाली आइटम है ना, समझ में आ रहा है? इज वॉचिंग यू ऑल. अपन सब इसके अंडर ही है. इसका सिग्नेचर ही डिफाइन करेगा इंडिया इज अ गुड मॉडिफाइड ओपिनियन देता हूँ ये तो है ना इंडिया के ऊपर. चलो एनीवेज, बट समझ में आया ना. अभी इसके बारे में R&D करना, और इससे भी बेटर जो मेरे ख्याल से इंडिया में जो बेस्ट CNAG विच द इंडिया हैज प्रोड्यूस सो फार वाज दैट शशिकांत शर्मा एंड द विनोद राय. दे वर द ट्रूली बेस्ट. मतलब वो बहुत स्मार्ट भी था एक्चुअली. दिखा दो विनोद राय ना, विनोद राय. उसकी प्रेजेंट डेजिग्नेशन देखे तो, अरे ये देखो बंदे का मतलब समझ रहे हो, एटीट्यूड देख रहे हो बंदे में, देख रहे हो मतलब ये बंदा इंडिया की ये बेस्ट. इसने हिमसेल्फ अलोन 4,75,000 crores के स्कैम ब्रॉट इट टू द नोटिस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सिंगल हैंडेडली. कोल इंडिया स्कैम सुना कभी? कोल इंडिया स्कैम 2010 में हुआ था. ही ब्रॉट इट. तेलगी स्टैम्प पेपर स्कैम ही ब्रॉट इट. कॉमनवेल्थ स्कैम 2010 ही ब्रॉट इट. मतलब जब ये CNAG था ना तब सबसे ज्यादा स्कैम हो रहे थे. एंड मतलब गॉड सेंट हिम 4,75,000 crores worth of scam, and right now this person is a legend. He is right now the internal auditor of what? और अपने शशिकांत शर्मा भी दिखाता हूं. शशिकांत, यही होता है इंटरनेट का फायदा. शशिकांत शर्मा, हाँ, फॉर शशिकांत शर्मा सर कैसे हो? हाँ ये देखो, ये ज्यादा स्मार्ट है नहीं बंदा. ये आनंद, अरे ये नहीं, ये मेरे को लग रहा है उसकी जवानी की फोटो है. उनकी जवानी की फोटो होंगी शायद. मस्त बंद. अरे ये कौन सा शशिकांत आ रहा बीच में? तो ये है अपने शशिकांत शर्मा सर. राइट नाउ ही इज द डिफेंस मिनिस्टर और समथिंग लाइक दैट इन इंडिया. मतलब ये लोग कभी रुकते ही नहीं है. और सोचो सबके बाल सफेद है, मुर्मू सर के नहीं है क्योंकि है ही नहीं. समझ में आ रहा है? चलो यहां तक समझ में आया. अभी सेक्शन नंबर 139 सब सेक्शन 2 छोटा सा सेक्शन है, आधा करेंगे आधा बाद में करेंगे, कल करेंगे. ठीक है. अभी देखो रोटेशन का मतलब क्या है. तुमने म्यूजिकल चेयर्स सुना है कभी? म्यूजिकल चेयर्स तो वैसे ही यहां पे हो रहा है. हर 5 साल के बाद अपन क्या करते हैं? ऑडिट को रोटेट. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, कंपनीज एक्ट 1956 वाज कंप्लीटली साइलेंट अबाउट द रोटेशन. उसमें रोटेशन के बारे में थोड़ा भी सेक्शन नहीं था. एंड 1956 बोलता था जितने मर्जी साल एक ऑडिटर के साथ बिता लो. इट मींस, और प्रॉब्लम क्या होती थी? अच्छा ये बताओ इसका मेन पर्पस क्या है? व्हाट इज द रीजन व्हाई वी आर नॉट अलाउइंग द ऑडिटर टू स्टे लॉन्गर फॉर मोर देन 5 years? क्योंकि ही में एंड अप गेटिंग द फाइनेंशियल रिलेशनशिप एंड फैमिली रिलेशन विद द क्लाइंट. अगर डॉटर पसंद आ गई तो
समझ में आ रहा है? अभी एमडी को ऑडिट करते करते 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अफेयर हो गया, चलो 5वें साल फिर से अफेयर हो गया, 6ठे साल अफेयर स्ट्रॉन्गर हो गया, 7th ईयर में शादी कर लेंगे। अब एमडी एंड यू आर द ऑडिटर, मतलब एक तरफ फादर इन लॉ और एक तरफ इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी, एथिकल कंडक्ट। अब तो मुझे बताओ क्या हैवी रहेंगी? फादर इन लॉ, क्योंकि घर में बीवी बेटी है। डेयर यू गिव द नेगेटिव रिपोर्ट ऑन माई फादर्स कंपनी, आई विल मेक श्योर कि आई विल गिव यू दैट। तू इधर रिपोर्ट दे, मैं तेरे को डिवोर्स देती, एक हाथ दे एक हाथ ले बोलती। तो ऑब्वियसली इसीलिए कंपनी से ने क्या बोला कि भैया ऐसा कंडीशन लाना ही नहीं। मैक्सिमम हाउ मेनी इयर्स? 5। एक ऑडिटर को अपॉइंट करो 5 साल, 5 साल के बाद रोटेट करो और नया ऑडिटर, तुम भी नया फेस देखो ना। आर यू गेटिंग द पॉइंट? And good thing is that it is very good initiative indirectly taken for the freshly qualified chartered accountant. मैं तुम्हें अगर फैक्ट बताऊं ना, you will be dumbfounded after listening to that fact which I'm going to disclose to you. 90% of the India का corporate culture, corporate system is in the hands of 10% of the handful chartered accountants in practice. समझ सकते हो? मतलब इंडिया का 90% of the companies are being audited by 10% of the chartered accountants in India. अब ये इनइक्वालिटी है, इट मींस रिमेनिंग 90% ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर ओनली हैंडलिंग व्हाट? 10%। तो इसीलिए आई से ब्रॉट दिस इनिशिएटिव कि भैया एक काम करो, 5 साल के बाद ऑडिटर मैंडेटरी तुम्हें चेंज करना, क्योंकि एक जाएगा। एंड दिस ईयर आरबीआई हैज आल्सो मेड द रेगुलेशन। पहले हमें बैंक ऑडिट में क्या होता था? वी यूज्ड टू डू द बैंक ऑडिट ना, द वन हु इज मोर एक्सपीरियंस दे यूज्ड टू गिव द बैंक ऑडिट टू दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट। बट मोर एक्सपीरियंस का मतलब है कि यू आर एन आउटडेटेड सीए। आउटडेटेड सीए का मतलब क्या है? आज मेरे एक फॉर्म में इफ आई इन माय फ्रेंड्स फॉर्म देयर इज वन सीनियर पार्टनर, आज अगर अपन उन्हें बोले ना सर एमएस ऑफिस में ये स्प्रेडशीट बना के दे दो मेरे को, ही कांट, ही इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन व्हाट? आर्टिकल असिस्टेंट्स, बिकॉज दे आर नॉट फेमिलियर विद द कंप्यूटर्स, दे आर नॉट फेमिलियर विद द ऑटोमेटेड ऑडिट एंड ऑल। और आरबीआई क्या बोलता है आज के टाइम पे? द टोटल बैंकिंग सिस्टम इज व्हाट? ऑटोमेटेड। तो हु इज मोर प्रेफरेबल, अ फ्रेश ब्लड और द ओल्ड ब्लड? फ्रेश ब्लड। इसलिए आरबीआई हैज स्टार्टेड गिविंग द बैंक ऑडिट्स टू द फ्रेशली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एज कंपेयर्ड टू व्हाट? एक्सपीरियंस। अब तुम मुझे बताओ, आर दीज इनिशिएटिव्स आर इन योर फेवर? यस। पहले क्या होता था? देयर वाज अ बैरियर मेड बाय दिस practicing CAs who are already there in the market. Now people like me who are only 10 years old in practice also are getting the audit. हमें नहीं मिलते थे। मेरा 3 बार रिजेक्ट हुआ है बैंक ऑडिट, 3 बार रिजेक्ट हुआ, just because the other firms were getting preferred over me. But nowadays we had DISA, Diploma in Information System Audit, and they are not anywhere near to us. What we can do in one day, they will take 10 days. और बैंक ऑडिट आरबीआई को चाहिए कि 10th या 20th अप्रैल तक all the audit report should be what? Signed. 20 डेज में पूरा इंडिया का बैंकिंग सिस्टम ऑडिट होता है। ओनली इन 20 डेज द होल इंडियाज बैंकिंग सिस्टम गेट ऑडिटेड। उसके लिए भी आपको आरबीआई के साथ एम्पैनलमेंट करवाना पड़ता है। एंड यू इफ यू आर एन एफसीए, फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू विल बी एलिजिबल टू गेट अ बैंक ऑडिट। मेरा 3 बार रिजेक्ट हुआ था बैंक ऑडिट, राइट? रीजन? क्योंकि दे आर गिविंग द प्रेफरेंस। लास्ट 2-3 years बैक आई स्टार्टेड गेटिंग बैंक ऑडिट। क्यों? क्योंकि नाउ दे आर रियलाइजिंग द फैक्ट दैट कि वी डोंट वांट द ओल्ड ब्लड ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट, वी वांट द फ्रेश ब्लड हु आर इक्विप्ड विद द ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट ऑफ डूइंग द ऑडिट। एंड दैट इज गुड इनिशिएटिव। इट मींस यू पीपल मे have a shifting in from employment to the practice nowadays. That's the reason practicing CAs are also coming more in the market now, because the things are improvising. पहले हम क्यों नहीं आते थे? क्योंकि पहले ही मालूम था कि 90% of the market is held up by these. अभी rotation आ गया, every 5 years they have to change. So you will get an opportunity to become the chartered accountant of a company. Are you getting the point? So that's why these things are good initiative. तो समझ में आया rotation? तो rotation is for how many years? पहले अपन बात रोटेशन की नहीं करेंगे, पहले अपन समझेंगे रोटेशन एप्लीकेबल किसके ऊपर है। वो क्या बोलते हैं फिर से? इफ यू आर अ विच कंपनी, तो रोटेशन इज व्हाट? कंपल्सरी। सेबी क्या बोलता है? इफ यू आर एन ऑडिटर ऑफ एनी लिस्टेड कंपनी, यू मैंडेटरली हैव टू डू व्हाट? रोटेशन। सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 2 इज ब्लाइंडली एप्लीकेबल टू यू विदाउट एनी टेस्टिंग। बट इफ यू आर अ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी और इफ यू आर अ प्राइवेट कंपनी, रीड द पॉइंट। व्हाट इज द फर्स्ट वन? और सेकेंड वन इज व्हाट?
If you're an unlisted public company and your paid up share capital is 10 crore or more, or if you're a private company and your paid up share capital is 50 crores or more, rotation is compulsory. इसका मतलब क्या? I am an unlisted public company, मेरा paid up share capital 9 crores है, तो rotation required or not required? It means I can continue with my auditor for a longer period of time also. But the moment it will breach the level of 10 crores or more, rotation becomes what? Compulsory. Same is the case with the private company, but private company का limit क्या है? 50. Which limit? We are testing what? Paid up. अच्छा ये बताओ, I'm a public company, my paid up share capital is 9.5 crores and I'm a private company, my paid up share capital is 49.5 crores. Rotation required or not required? Law maker is very clever. उन्होंने बोल रहा है, if the paid up share capital test is not matching, we would like to see their outstanding borrowings. Which one? In both the cases, if the outstanding borrowing is greater than equals to what? 50 crore. Then also rotation is compulsory. It means either of the two conditions to be satisfied. Now tell me, unlisted public company ka conditions? Either paid up share capital should be 10 crores or more, or outstanding borrowing should be 50 crores or more. Private company ka either paid up share capital should be 50 crores or more, outstanding borrowing should be 50 crores or more. If any of the two conditions are satisfied in either of the company, the rotation will become compulsory. But suppose अगर मेरा borrowing भी less than 50 है, मेरा paid up share capital भी less than 50 है, and I'm a private company, now no rotation. I can continue with my auditor for a longer period of time, even for a more than 5 years, 6, 7, 8, 9, 10. Did you get the point? तो कंपनीज के ऊपर मैंडेटरी is there, but because of these conditions. So tell me, I'm a listed company. Anything to be tested or always mandatory? I'm unlisted public company. Any of the two conditions? Paid up share capital 10 crores or more, or my outstanding borrowings 50 crores or more. And I'm a private company. Paid up share capital 50 crores or more, or outstanding borrowing also 50. लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि अगर आप ओपीसी और स्मॉल हो तो आप क्या हो? एग्जेम्प्टेड. मतलब एज मेनी ओपीसीज में एज मेनी इयर्स यू कैन बिकम व्हाट? ऑडिटर. अगर मैं चाहूं तो मैं ओपीसी में 30 इयर्स तक ऑडिटर बन सकता हूं, क्योंकि दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रोटेशन, सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन. क्योंकि ओपीसी का ऑडिट इतना छोटा होता है कि इट इज नॉट काउंटेड इवन. आर यू गेटिंग द पॉइंट? देयर शुड बी समवन टू मेक अ रिलेशनशिप ना. ओपीसी में मिनिमम मैक्सिमम कितने हैं? किसके साथ बनाएंगे रिलेशन? नंबर ऑफ पीपल आर मोर और लेस. अरे मैं फाइनेंशियल रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं. पगलेट इंसान, जब भी रिलेशनशिप बात करो एक ही टेंजेंट पे जाते हैं. अच्छा मतलब फाइनेंशियल रिलेशनशिप की भी बात होती है. समझ में आ रहा है? रिलेशनशिप समझो. एफ एंड एफ. व्हाट इज एफ एंड एफ? फैमिली एंड फाइनेंशियल. समझ में आ रहा है? हाँ समझ गया मैं. ज्यादा मत बोल. अंदर ही रख. समझ में आ रहा है सर? अब मैं एप्लीकेबिलिटी समझ में आया? चलो लास्ट टाइम बता दो, उसके बाद ब्रेक खत्म. जल्दी बताओ, सेक्शन नंबर क्या है? 2. किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन? मैं लिस्टेड कंपनी हूं क्या? मैं अनलिस्टेड प्राइवेट हूं. Paid up share capital 50 crores or more, outstanding borrowing 50. I'm unlisted public. 10 crores or more, outstanding borrowings 50 crores. मैं ओपीसी हूं, एग्जाम. स्मॉल हूं, डॉर्मेंट हूं. बोल के देखो. कौन बोला? लिखा क्या कहीं भी? ये तो वही बात होगी ना कार वाली, मैंने बताया था ना. ये ट्रैप होता है आईसीए का, ओपीसी, स्मॉल, डॉर्मेंट, और फिर वो अपना इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, बैंक. तो तुम्हें जो लिखा जाए वही देखना है, ठीक है ना? डोंट ट्राई टू ओवररन योर हॉर्सेस व्हिच आर देयर इन योर हेड. ठीक है, चलो दैट्स इट फॉर टुडे एवरीवन. रिमेनिंग 139 सबसेक्शन 2 विल डू टुमारो. ठीक है, विद इन अ मोर एग्जॉस्टिव मैनर, राइट? चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस लंच.